Good morning students. Today we will learn to find highest common factor, HCF. What is the full form of HCF? H stands for highest, C stands for common, F stands for factor. Highest means you have to find largest means सबसे बड़ा. Common means same. Factor means exact divisor. What do you understand by exact divisor? ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को पूरा डिवाइड कर दे वो क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट डिवाइजर, factor of that number. For example, 12. If we will divide 12 by 3, yes, 12 by 3, 3 4s are 12. It means 3 ने 12 को पूरा डिवाइड कर दिया. Remainder is 0 here. So 3 is a factor of 12. Okay, understood? What is the meaning of exact divisor? So it means in HCF we will find largest common factor. It means हम ऐसा नंबर निकालेंगे जो नंबर दोनों दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देगा और वो सबसे बड़ा होगा. इट मीन्स हम फाइंड आउट करेंगे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द फैक्टर. नाउ इफ वी आर डूइंग द सम 12 and 16. First we will find the factor of 12. If we will divide 12 by 1, answer is 12. If we will divide 12 by 2, 6. 3 से डिवाइड करो, we will get 4. Now अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इट मीन्स 4 रिपीट होना स्टार्ट हो गया. जैसे ही रिपीट होगा आपको और फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है. इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी गॉट all the factors. Now write the factors in the multiplication form. Okay, now find the factor of 16. 16 divided by 1, answer is 16. Divided by 2, 8. Divide by 3. It is not the exact divisor. 3 is not the exact divisor of 16. So we will divide by 4. 4 4s are 16. Repeated. It means no need to take more. Now write in multiplication form. Now write the factor of 12. 1 2 3 4 6 and 12. Now write the factor of 16. 1 2 4 8 16. After that find the common factors. 1 is common in both. 2 is also common in both. 4 is also common. Okay, so common factor is equal to 1 2 4. yes, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकाले? नंबर के फैक्टर. अब हमने क्या निकाले? उनके कॉमन फैक्टर. अब कॉमन फैक्टर में भी जो क्या होगा? हाईएस्ट, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF. इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4. इट मीन्स HCF इज 4. नाउ राइट द HCF. HCF is equal to 4. I hope you have understood. We will find HCF by prime factorization. Question number 1. We will find HCF of 16 and 18. How? By prime factorization. First, write the prime factorization form of 16. 16, last digit is 6. It is divisible by 2. 2 8s are 16. 8 is also divisible by 2. 2 4s are 8. 4 again, 4 is divisible by 2. 2 is also divisible by 2. 2 1s are 2. Now we will find the prime factorization of 18. Last digit is 8, so it is divisible by 2. 2 9s are 18.
If the last digit is 24680, only then the given number will be divisible by 2, otherwise not. Now 9, it is divisible by 2? No, it is divisible by 3. 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now write the prime factorization of 16. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Now write the prime factorization of 18. 2 multiply 3 multiply 3. Now find the common factors. Only 2 is common in both, so highest common factor is equal to 2. Understood? Now we will learn this by one more question. Write the prime factorization of 24 and 36. Divide by 2 first. 12. 2 6s are 12. 2 3s are 6. 3 1s are 3. Now last digit is 6, so it is divisible by 2. कोई भी नंबर अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो आप चाहो तो उस नंबर का डिवाइड करके 36 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, आप चाहो तो 36 को हाफ भी कर सकते हो. ठीक है, 36 का हाफ कैसे करेंगे, जैसे 30 का हाफ 15, 6 का हाफ 3, 15 + 3 18. इसका मतलब 36 को 2 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 18. किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने से उसका हाफ हो जाता है. नाउ वी विल डिवाइड 18. 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ 18 इज 9. डिवाइड बाय 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now write the prime factorization of 24. Apply 3, 36. 2 is common, again 2 is common, 3 is common. So HCF is 2 2 3. जो भी नंबर आपका कॉमन आया है आपको उसे एक ही बार लिखना है. जैसे 2 कॉमन है ना तो एक बार लिख दिया, यहाँ फिर से 2 कॉमन आ गया फिर से लिख दिया, फिर 3 कॉमन आ गया फिर से लिख दिया. और अब इनको क्या करेंगे, इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई. 2 2s are 4, 4 3s are 12. So HCF is 12. आप इसमें आंसर भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया. देखो 24 को 12 से डिवाइड कर सकते हो आप. Yes, 12 2s are 24. 36 also divisible by 12. Yes. Understood? Now do the prime factorization of 19. Last digit is 9. It is divisible by 2? No. 3 19 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता. 5 की टेबल में नो, 7 की टेबल में नो. क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं. और जो नंबर 2 3 5 7 इन चारों से डिवाइड नहीं होता 1 से 100 तक का, वो नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर. और प्राइम नंबर तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है. और 19 प्राइम नंबर है, इसका मतलब 19 तो 19 की टेबल में ही आएगा. 19 1s are 19. Now write the prime factorization of 20. 2 10s are 2 5s are 5 1s are. Now write the prime factorization of 19. Only 19. 20. 2 multiply 2 multiply 5. Here no number is common. 19 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 19 है, 20 में 2 2 5. कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है. तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे HCF, बिकॉज वी नो डैट कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है. तो यहाँ पे इसका मतलब 19 और 20 दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते. इसीलिए 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है और 1 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1. किसी भी नंबर में आपको लगे कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. इसका मतलब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होगा. अंडरस्टूड? वी विल लर्न HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड
check by long division method. There are three methods for finding HCF. First, by finding all factors. Second, by prime factorization. Third, by long division method. तीनों मेथड सीखने के बाद जो मेथड आपको लगे कि मुझे ये अच्छे से समझ में आया, आप एक मेथड डिडक्ट कर सकते हैं. बट कई बार पेपर में मेथड मेंशन होता है तो आपको उसी मेथड से ही फिर सॉल्व करना पड़ेगा. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 48 and 68. First we will write the prime factorization. Now you have learned. It is divisible by 2. Again divisible by 2. 17. Last digit is 7. It is not divisible by 2, not 3, not 5 and not 7. It means 17 is the prime number. 17 ones are 17. Prime number सिर्फ अपनी ही टेबल में जाते हैं. Okay. Now write the prime factorization of 48. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. Now 68. 2 multiply 2 multiply 17. Now find the common factors 2 and 2. So HCF is equal to 2 multiply 2, that is 4. Now we will do this question by long division method. Here is 68, we have to divide this by 48. Long division method means with the help of division we will do. Okay. Now first 48 ones are 48, 0, 0 minus 4, 2. Now again you have to divide. Now यहाँ पे बेटा आपको रिमाइंडर क्या आया 20 और डिवाइजर क्या था पहले 48. अब जो डिवाइजर है नेक्स्ट टाइम जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा डिविडेंड. हर बार जब तक आपका रिमाइंडर बचता रहेगा जो भी उससे पहले वाला डिवाइजर होगा वो क्या बन जाएगा डिविडेंड. नाउ 22 सा 48 अगेन डिवाइड बाय. अब क्या है आपका डिवाइजर 20 क्योंकि रिमाइंडर बच गया तो फिर से जो किससे डिवाइड किया था आपने 20 से, तो 20 क्या बन जाएगा डिविडेंड. तो 8 2 सा 16 माइनस 4. Now divide by 8. 4 2 सा 8. Now no remainder is here. It means now we have found our exact divisor. हमें हमारा exact divisor मिल गया. 20 से भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 8 से भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन 4 से ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया. तो इसका मतलब 4 ही हमारा क्या है HCF. जब आप तीनों मेथड में से कोई सी भी मेथड से करो बट आप देखोगे कि इस मेथड में सबसे कम टाइम लगता है. ठीक है. बट प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो. ओके. नाउ इट इज वेरीफाइड. नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन 35 and 95. First write the prime factorization of 35. 5 7s are 7 1s are 7. Now write the prime factorization of 95. 19 is a prime number. So 35 is equal to 5 multiply 7 and 95 is equal to 5 multiply 19. Here 5 is only common. So 5 is HCF. Okay. Now we will learn this by long division method. 95 35. हमेशा ग्रेटर नंबर आपको अंदर लिखना है और छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना है. 35 1 35, 35 2 70, 5 2. रिमाइंडर बच गया. इट मीन्स रिमाइंडर अब क्या बन जाएगा डिवाइजर. और जो जिस नंबर से आपने पहले डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था आपने 35 से. 35 कहाँ जाएगा यहाँ. ओके. 25 1 25. Now divide this 10 10 2 25. कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे. पहले किससे डिवाइड किया था
10 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 10. ओके, सो 5 2 ज़ा 10. तो इन हमारे पास 4 डिवाइज़र है यहाँ पे 35, 45, 10 एंड 5. लेकिन इन चारों में से किस नंबर ने उसे पूरा पूरा डिवाइड किया जिसमें रिमाइंडर नहीं बचा? 5 ने. तो इसका मतलब 5 ही हमारा क्या है? HCF. I hope you have understood. Now we will do one more sum. If there are 3 numbers, so how can we find HCF? By prime factorization and by long division. Now we will do practice for this also. First find the prime factorization of 36. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 24 divided by 2, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Now write the prime factorization of 48. 24, 12, 6, 3, 3 1s are 3. Now write the prime factorization of 36. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. 24 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. 48 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. अब हम चेक करेंगे वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो. तीनों में कॉमन है, ये भी तीनों में कॉमन है, 3 ये भी तीनों में कॉमन. 2 देखो 2 में कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो हम HCF में वो नहीं लेंगे. हमें वही नंबर लेने हैं जो तीनों नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर हो. ओके, सो नाउ राइट द HCF is equal to 2 multiply 2 multiply 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. Now we will find the HCF of these numbers by long division method. 3 numbers 36, 24 and 48. So first we will take first 2 numbers. इन दोनों नंबर्स में से पहले बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? 36. तो पहले हम 36 को क्या बनाएंगे? डिविडेंड. और 24 को बनाएंगे हम डिवाइज़र. ओके, तो 24 1s are 24. रिमाइंडर आ गया और आपको तो पता है रिमाइंडर आएगा तो हम क्या करेंगे? हम फिर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब डिवाइड किससे करेंगे? रिमाइंडर से, यानी कि 12 से. और जो 24 होगा वो क्या बन जाएगा? हमारा डिविडेंड. यानी कि जो हमारा पहले वाला डिवाइज़र था अब वो हमारा क्या बन गया है? डिविडेंड. 12 2s are 24. 12 तो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया. इट मीन्स यहाँ पे इन 36 और 24 का HCF क्या है? 12. बट तीनों नंबर का है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम HCF निकालेंगे. किसका? टू फाइंड HCF ऑफ इन दोनों नंबर का जो भी HCF आएगा उस HCF का तीसरे नंबर के साथ फिर से HCF निकालना है. यानी इन दोनों का HCF क्या आया? 12. अब 12 और 48 का HCF निकालेंगे. टू फाइंड HCF ऑफ (36), (24) and 48, we will find HCF of 12 and 48. क्योंकि 12 क्या है? इन दोनों का HCF. ओके, नाउ फाइंड 12 और 48 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 48. और इसे किससे डिवाइड करेंगे? 12 से. ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया. अगर ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो फिर से हम क्या करते कि जो डिवाइज़र होता वो हमारा क्या बन जाता? डिविडेंड. और रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करते. और जो सबसे लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वही हमारा तीनों नंबर का HCF कहलाएगा. अब इन तीनों में सबसे लास्ट में क्या आया? 12. तो इट मीन्स आर HCF इज HCF of 24, 36 and 48 is 12. I hope you have understood. Thank you. Have a nice day.